ڈائیو نے ایک گھر کے 5 افراد کو کچل دیا۔ 18 سال سنا، بچی کی عمر 18 سال تھی، بڑی بہن سب سے چھوٹی ہماری یہ بہن، یہ اپنے بچوں کو پڑھا رہی تھی غریبی میں بھی۔ تو یہ ان کا ایک بھائی ہے، تو یہ کہتا تھا ماں کو میں نہیں پڑھ سکا تو میں اپنی بہن کو پڑھاؤں گا تاکہ وہ ہمارا بازو بن سکے۔ اپنے باپ سے کہتی تھی کہ میں آپ کا بازو بنوں گی، اور ابھی اسے صرف 20 دن ہوئے ہیں جاب کرتے ہوئے۔ آخری الفاظ تھے بابا بس، ناک اور منہ سے خون تھا، ٹانگ سے خون تھا، بلڈ رکنے کا نام نہیں لیتا تھا، ہم بلڈ دیتے تھے بلڈ ختم ہو جاتا تھا۔ اور عبدالحادی تو میری جان تھی، اس میں بہت زیادہ انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا اس میں، اور اللہ کی رضا کے آگے ہم راضی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان جی آفیشیل۔ ناظرین، فرائیڈے کی رات ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو ڈائیو، میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈائیو نے ایک گھر کے 5 افراد کو کچل دیا۔ آج میرے ساتھ ان کی فیملی بیٹھی ہیں، ان سے بات کر کے جانیں گے کہ گزشتہ جو رات گزر چکی ہے۔ پچھلے ولاگ میں پچھلی ریکارڈنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بچی جو ثنا، جس کی ٹانگ کٹ چکی تھی، 18 سال کی بچی تھی ثنا، وہ گزشتہ رات فوت ہو گئی ہے۔ وینٹیلیٹر پہ 3 سے 4 دن وہ پڑی رہی ہاسپٹل میں، بے شمار اس کو بلڈ کی بوتلیں چلیں، جہاں پر نہ ہو سکی، اپنے حال کے حقیقی سے جا ملی۔ آج میرے ساتھ ان کی فیملی بیٹھی ہے، ان سے بات کریں گے اور باقی آنے والی جو لائف ہے اس کے بارے میں آپ کو ساری باتیں شیئر کریں گے کہ ثنا کیسی تھی، عبدالحادی کیسا بچہ تھا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ جو آپ ہمارے لیے آئے ہیں اور ہماری بات سننے کے لیے۔ دیکھیے جی، میں بچی کی خالہ ہوں، ہماری 18 سال ثنا، بچی کی عمر 18 سال تھی، بڑی پیاری بچی، اور اس کی والدہ جو ہماری چھوٹی بہن ہے۔ ہم 8 بہن بھائی ہیں، سب سے چھوٹی ہماری یہ بہن، یہ اپنے بچوں کو پڑھا رہی تھی غریبی میں بھی، اور میرے بہنوئی اس کا بھی کوئی اتنا اچھا کاروبار نہیں ہے۔ تو یہ ان کا ایک بھائی ہے، تو یہ کہتا تھا ماں کو میں نہیں پڑھ سکا تو میں اپنی بہن کو پڑھاؤں گا تاکہ وہ ہمارا بازو بن سکے۔ تو وہ اپنے باپ سے کہتی تھی کہ میں آپ کا بازو بنوں گی۔ تو اس نے FA کیا، ڈیزائنر کورس کیا، اور ابھی اسے صرف 20 دن ہوئے ہیں جاب کرتے ہوئے۔ بھائی اس کو چھوڑ کے آتا تھا اور رات کو اس کے پاپا لے جاتے تھے۔ جمعے کی رات کو یہ ساری فیملی، ہوا چل رہی تھی تو یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس ٹائم اس کا باپ جب جا رہا ہے تو اس کے بھائی کے 2 بچے اور ایک بچہ ان کا اپنا، تینوں بچوں کو لے کے جا رہا ہے۔ واپسی پہ اس نے ثنا کو بٹھایا ہے۔ جب یہ نصیر آباد پہنچا ہے تو کسی نے کہا ہے کہ آپ اپنا عبایا ٹھیک کر لیں، تو ہماری بچی نے کہا ہے بابا ذرا گاڑی سائڈ پہ روکے۔ اس نے بالکل فٹ پاتھ کے ساتھ گاڑی کھڑی کی ہے، اور جیسے ثنا نیچے اتری ہے صرف وہ اپنا عبایا ٹھیک کر رہی ہے، تو اس کے بائک سے نیچے اتری تھی؟ جی، اور اس کے آخری الفاظ تھے بابا بس، کہ بس میرے اوپر بس چڑھ گئی ہے، بابا بس بس، یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اور بس کہتے ہیں 19 سیکنڈ ان بچوں کو ٹیروں کے نیچے رولتی رہی۔ جو ہمارا 8 سال کا بچہ ہے، اس کے پیٹ کے اندر سے آنتریں، اس کی فل جگہ ساری باہر آ گئی، اور وہ جو 2 بچے تھے وہ فٹ پاتھ پہ گرے۔ ان میں سے ایک بچہ نارمل نہیں ہے، وہ 12 سال کا ہے، اس کا دماغ 6 سال کا ہے، اور اس بچے کو ایسے سر پہ چوٹ لگی ہے کہ اس کو 25 ٹانکے لگے ہیں، 25 سٹیچنگ اس کے پاؤں پہ لگے ہیں، اس کے پاؤں پھٹ گئے، اور جو بچی تھی 6 سال کی اس پر آئل گر گیا بس کا، اور اس کا پیٹ سارا جل گیا۔ اب یہ اکیلا، بیٹی کہاں، 3 بچے کہاں، اور خود کو چوٹے، اور بائک بس کے نیچے تھی، اور یہ اٹھا، اس نے اپنی قمیض اتاری، اس میں اس کی آنتریں کٹھی کی بچے کی، بچے کو باندھا۔ ایک باپ کی محبت دیکھیے، خود خون و خون ہے، تو اس نے بچے کو باندھا، اور انسانیت ابھی قائم ہے۔ لوگوں نے سڑک سے وہ 2 بچے اٹھائے، رکشے میں ڈالے، اس نے کسی کو فون دیا کہ جو پہلا نمبر ہو اس پہ میرے گھر اطلاع دے دیں،
क्योंकि एक बच्ची तो वहाँ पड़ी हुई थी हमारी 18 साल सना। ये तीनों बच्चे लेके चिल्ड्रन किया, जैसे बच्चे को लिटाया डॉक्टर का बच्चे की डेथ है और 2 बच्चों को अंदर ले गए और ये वहीं पे इसको अटैक हो गया। जब इधर से 2 हमारे भतीजे गए सड़क पे, तब तक बच्ची की आंखें खुली थी और वो अपना हाथ लेके जो टांग वाला हिस्सा सारा टैर के नीचे आया, उस पर वो बता रही थी इशारे से कि मेरा ये हिस्सा ख़त्म हो गया। बस वो आंखें उसने बंद की और इन लोगों ने 16 घंटे ऑपरेट किया। पहले हमसे 25 बोतलें ब्लड की ली, 16 घंटे ऑपरेट में रखा। बाप बच्चे की लाश घर पड़ी है, बाप दिल का वार्ड जो उसमें है और बच्ची हमारी ऑपरेशन थिएटर में है और 2 बच्चे जो हैं वो भी आईसीयू में पड़े हैं जिनको स्टिच लग रहे हैं। हम सारे बिखर गए। हमारी क्या हालत है, ये हमारी बहन पर एक क़यामत टूट गई, ऐसी क़यामत कि उसने वक्त से पहले क़यामत देख ली। और इनके ऐसे माली हालात हैं कि इस इलाके में, ये कैंची का इलाका है, इस इलाके में स्मेल वाला पानी आता है। तो ये लोग पानी बोर पे 1 लाख लगता है, इनके पास वो नहीं कि ये बोर निकलवा ले और ये उस बदबूदार पानी से अपने घर के मसाइल हल करते हैं। तो देखें कितनी गरीबी में वो अपने बच्चे पढ़ा रहा था और उन बच्चों का कसूर क्या है कि देखें 19 सेकंड वो बस वाला उन्हें रोलता रहा है और कहते हैं कि उसके 8 बच्चे हैं। अगर उसके सीने में दिल था तो वो ब्रेक लगाता ना। ये तो लोगों ने उसको मारा पीटा, रोड़े मारे, बस को पत्थर मारे। और एक हमसाई इसी घराने के, ये तीसरा घर है, वो वहाँ से गुजर रहे थे तो वो कहती है हमें नहीं पता चला क्योंकि वो खूनो खून बच्चे थे। तो वो कह रही है मेरे मियाँ बकायदा जब वो गाड़ी आगे से गुजर गई है ना बच्चों को रोलती हुई, तो उन्होंने भी उन बच्चों को उठाने की कोशिश की है, बच्चों के टुकड़े कर दिए। जो सना हमारी 18 साल की थी, हर चीज़ डैमेज हो चुकी थी। जब हम हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने बड़ी जान लगाई। वो कहते थे कि 90% ख़त्म है, 10% इसमें है, 3% दिमाग चल रहा है, 7% हार्ट बीट। तो अब देखिए जब हमें फ़ोन आया, एक जनाजा हम दे चुके थे, तो हमें फ़ोन आया कि बच्ची का वालिद या वालदा, जो वालदा खश में पड़ी है, या भाई सहन करे, 1 मिनट के अंदर फैसला करे उसकी टांग को काटना। और पता ये 16 घंटे बाद उन्होंने बताया? जी 16 घंटे का ऑपरेशन करके, ऑपरेशन अंदर पूछा है, बाहर तो बच्चे आए ही नहीं, अंदर पूछा है कि टांग काटनी है, ब्लड नहीं रुक रहा और हमें 1 मिनट में फैसला बताया जाए। फिर मैं और मेरा भाई हम अपनी बहन के पास गए हैं, तो रो रही है वो कश में उसे, तो हमें उसे झूठ बोला हुआ था कि बच्ची को राड पड़ रहा है, हमने उसे उसकी हालत नहीं बताई थी। फिर हमने अपनी बहन से पूछा कि इजाज़त दे, उसने कहा मेरी बच्ची की जान बच जाए उसकी टांग काट ले, सिर्फ मेरी बच्ची की जान। और हमारे जेंट्स बता रहे हैं कि 3 टुकड़ों में टांग काटी गई। डॉक्टर कहते थे कि कुछ हिस्सा बच जाए जिससे उसकी दूसरी टांग लग जाए, तो लेकिन ब्लड रुका ही नहीं, तो उसके 3 टुकड़ों में टांग काटी गई। और 4 दिन जो वो पड़ी रही आईसीयू में, दूसरी टांग से उसका गोश्त लेके उसको बार बार सीते थे कि ब्लड नहीं रुका। 35 खून की बोतलें हम लोगों ने अरेंज की। अब सोचे कि एक गरीब घराना और एक उसका भाई और उसके कज़न कैसे कैसे यूनिवर्सिटी से लोगों को बुला रहे हैं। हमारे बच्चे जिनका ब्लड, क्योंकि बच्ची का ब्लड ओ ग्रुप था, तो इसलिए हमें दिक्कत हो रही थी, हमारी मदद को कोई नहीं पहुंचा। एक स्पीडो वाला वहाँ खड़ा कर दिया गया। मैं परसों बहुत बोली, मेरी अस्पताल में डिप्टी थी बच्ची के पास, तो वो मुझे कहता है कि मैं आपको कोक पिलवाता हूँ बाजी। तो मैंने कहा हमने कोक नहीं पीनी, तुमने हमारी बहन का घर उजाड़ दिया है, जाके देखो हमारा बहनोई किस हाल में है, हमारी बहन किस हाल में है, और हमें पानी की प्यास नहीं है, ये पानी हम पी सकते हैं। तुम देखो कि अपने ड्राइवर को कि क्या वो नशे में था, कि वो उसके भी तुम लोग कहते हो 8 बच्चे हैं। अब सोचे कि जिसके 8 बच्चे हों वो किसी के 4 बच्चों को कैसे रोल सकता है। अब जो 2 बच्चे हैं, चिल्ड्रन वालों ने कहा है कि टांके लगा दिए, सुबह बच्चे दे दिए, जाके इनको एसी में रखे। भाई गरीब घरों में खाना नहीं है, एसी कहाँ से आएगा, एसी के बिल कहाँ से आएंगे। अब हमने उनको किसी घर में रखा हुआ है कि बच्चों को हवा चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन वालों ने हमें फारिग कर दिया कि आप इनको ले जा सकते हैं।
तो अब गरीब माँ बाप कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को। और 2 लाल हमने अल्लाह को दे दिए, एक 8 साल का और एक 18 साल की सना, और जो उसने 4 दिन या 5 दिन, और ये 2 सिस्टर हैं हमारे साथ, ये उसकी दोस्त थी और ये सिस्टर थी, जो इन्होंने हेल्प कर दी है ना हमारी, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और इन्होंने हमारी बच्ची की, उसके ब्लड बार बार आता था और ये लोग जान, क्योंकि हमें तो इजाज़त ही नहीं थी, तो ये बच्चियां जाती थी और उसका ब्लड साफ़ करती थी कि उसका ब्लड रुका ही नहीं। आंखों में आंसू थे, नाक और मुंह से खून था, टांग से खून था, ब्लड रुकने का नाम नहीं लेता था। हम ब्लड देते थे, ब्लड ख़त्म हो जाता था। इस तरह उसका हाल रहा है और अल्लाह ने उसे पर्दापोश कर लिया है। हमारी दरख्वास्त है मरीम नवाज से कि वो आए और इनका घराना देखे। उसकी छोटी बहन बार बार बेहोश हो जाती है, तो वो आए और इनकी को माली हेल्प करे, क्योंकि ये सारा घराना तबाह हो गया है। क़यामत से पहले क़यामत टूट पड़ी। नाज़रीन, मेरे साथ सना की ताई बैठी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी सामने जी बताएंगे इसकी ताई हूँ, और वो सना और अब्दुल्लादी मेरे बच्चे थे, मैंने उसको बच्चों में से पाला था। जी जी ताई साहब, इन्होंने हमारे बच्चों पे बहुत जुल्म किए, क्योंकि मैंने इनको अपने हाथों से पाला था। और अब्दुल्लादी तो मैंने मेरी जान से, पूरी फैमिली से, हमारी हद से ज़्यादा हमें प्यारा था। तो मेरा देवर इसको ले क्या कसूर उसने किया कि ये की गाड़ी उधर खड़ी की है और बच्ची अबाया से ही कर रही है, और उसने मेट्रो ने इतना जुल्म उस भाई ने कर दिया कि पीछे से आके मेरी बच्ची को इतना कुचल डाला उसको। और अब उससे तो बोलने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि मेरा जान थी वो दोनों, और अब छोटा बच्चा अब्दुल्लादी तो मेरा ज़्यादा जान थी उसके। तो अभी मैंने जो उसका फेफड़े जो चीज़ें निकल आई थी वो तो मैं देख ही नहीं सकती थी। एक अस्पताल, दूसरे अस्पताल में मेरी सना बेटी थी, मैं उधर थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि इस हॉस्पिटल में मेरा अब्दुल्लादी है, वो दूसरे हॉस्पिटल में था। मैं उधर बैठ के तड़प रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं जल्दी जल्दी एक बच्ची है छोटी, हानिया और अहमद, वो उधर थे, उनको मैं ले के, उन्होंने कहा चिल्ड्रन में ले जाओ, उनकी इतनी हालत ख़राब थी। फिर मैं उनको ले के उसको चिल्ड्रन में ले गई, वहाँ पे मैंने टेस्ट कराए, उनकी इतनी हालत ख़राब बहुत ज़्यादा। अभी उधर जब मैं पहुँची तो मेरा अब्दुल्ला की डेथ हो चुकी थी और वो घर चला गया। और मैं जितनी देर उन 2 छोटे छोटे दिनानी के बच्चों के पास रही, क्योंकि मुझे सुकून नहीं आ रहा था जब तक इनका ऑपरेशन नहीं होगा, एक छोटे अहमद का, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। जब उसका ऑपरेशन हो गया फिर मैं गई। मैंने मेरी अब्दुल्लादी की बहुत बुरी हालत थी, जब मैंने इसको देखा मेट्रो वालों ने बहुत जुल्म किया मेरे बच्चों के साथ, मेरे आदि के साथ। मेट्रो बस वालों ने एक खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया, और हम पता नहीं कैसे जी रहे हैं घर में। मेरी दिल स्पीडो बस वाले ने एक ख़ानदान को तहस नहस कर दिया। उसकी आने वाली ज़िंदगी जो है ख़ानदान की, उसको बर्बाद कर दिया। हम पता नहीं घर में कैसे रह रहे हैं, मेरे दिरानी देवर कैसे रह रहे हैं। वो तो बार बार ऐसी बेहोश हो जाती है। हमें पता है ना, अब 3, 4, 5वां दिन हो गया। और मरीम नवाज को रहम आना चाहिए था मौके पे। यही मौके होती है, अगर हमारे से जुल्म हुआ है तो उसको आना चाहिए, देखना चाहिए हमारे घर के हालात कि हम कैसे रह रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, मेरा देवर कैसे जी रहा है, उसकी माँ कैसे जी रही है। उसको पता है उसके दिल के टुकड़े चले गए दुनिया से। एक भी बच्चा चला जाए तो माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसके 2 जिगर के टुकड़े चले गए। हम क्या करेंगे उनके बगैर? हम नहीं रह सकते, हमारे बच्चे इस भाई ने ख़त्म कर दिए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, सना को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता हम करे। कैसे साफ करते थे, मैं बच्चियाँ सब जाती थी उसकी खिदमत करने कि ये हमारी जान है, हमारी बहन है। बच्चियाँ रोती थी, उसके लिए तड़पती रही हैं सना के लिए कि ये बच जाए, किसी तरीके से बच जाए, लेकिन नहीं। हादी की कितनी उम्र थी? जी, हादी की कितनी उम्र थी? हादी की उम्र 8 साल थी और माशाल्लाह वो हाफिज बन रहा था। हम हर वक्त खुश रहते थे कि हमारा बच्चा हाफिज बन रहा है, छोटा बेटा है, और हमें इतनी खुशी होती थी। आज हमारा बेटा दुनिया में नहीं है, हमारे पास उसके पास नहीं भी इतना कुछ होता था, फिर भी वो कहती थी मैं अपने बेटे की सारी ख्वाहिशें उसकी पूरी करती थी, हर बात इसकी
सारी ख्वाहिश पूरी करती थी। उसको कहीं बाहर भी जाना पड़ता था, उसके लिए ये ख्वाहिश सारे बहन भाई इसकी पूरी करते थे। और वो हमारी जान थी, हमारे बच्चे। बिल्कुल जी, हर घर के जो बच्चे होते हैं वो घरों की आन शान और मान होता है।